आप सभी का स्वागत है आज के इस हमारे दूसरे मिनट के सेशन में। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं सक्षम सोसाइटी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो सक्षम सोसाइटी 2022 से युवाओं को रोजगार योग्य बनाने और उन्हें कौशल योग्य बनाने के लिए ट्रेनिंग कराती है, जिसमें शामिल है बिजनेस एंड अकाउंट्स ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन एंड स्पीकिंग की ट्रेनिंग। और इसके साथ साथ कुछ वीकली सेशन भी कराते हैं, जिसमें भारत की खोज जैसे सेशन है, जिसमें हम अपने देश के विभिन्न राज्यों को जानने का प्रयास करते हैं। और उसके साथ साथ हम रूट्स एंड विंग्स, ये सेशन अभी फ्रेंडली आपसे चल रहा है, ये हम करा रहे हैं, जिसमें हम आपको पर्सनल डेवलपमेंट और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं उससे एक अलग टॉपिक से बात करते हैं। तो आगे इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सक्षम सोसाइटी ना सिर्फ ट्रेनिंग के अलावा बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, और जिसमें 26 बच्चे शामिल है, और इन 26 में से 10 बच्चे जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिन्हें मंथली स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये था और सक्षम सोसाइटी के बारे में। और जैसा कि आज का सेशन आपका है हाउ टू गेट अ गुड जॉब, तो उस पे आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विजय राजा सर, जो कि ब्लिंकिट के डायरेक्टर हैं। और आई होप आप सभी ने ब्लिंकिट का नाम जरूर सुना होगा। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट जो सर चल रहे हैं, जो कि हमारे आज के हमेशा की तरह क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे साथ रहेंगे। तो बिना वक्त गवाए मैं इनवाइट करना चाहूंगा सचिन अग्रवाल जी को फॉर द इंट्रोडक्शन रिसोर्स पर्सन एंड आवर प्रेसिडेंट। ओवर टू यू सचिन अग्रवाल जी। Good evening, everyone. It's my pleasure to introduce our estimate speaker for today, Mr. Nischay Budhiraja. He is currently serving as a director at experience across diverse business environments. An alumnus of IIM Calcutta and IIT Roorkee, Mr. Budhiraja is also a CAT 100 percentile, reflecting his exceptional academic achievements. His professional journey from management consulting to strategy and leadership roles in some of Indian leading companies is truly inspiring. We are delighted to have been with us today, and I am sure our participant will gain valuable insights from his Sachin, I think there is some issue on Yahoo network, so I think I take the lead. So I'm introducing our resource person, Mr. Sudhir Raja sir. So it's my pleasure to introduce you, sir. So he is currently serving as a director at Blinkit and brings with him extensive experience in strategy, consulting, and leadership. Prior to this, he worked in central strategy at Zomato and also spent nearly 3 years with McKinsey and Company, gaining valuable experience across diverse business and environments. And alumnus of IIM Calcutta and IIT, Mr. Budhiraj is also a CAT 100% Tyler, reflecting his exceptional academic achievements. His professional journey from management consulting to strategy and leadership roles in some of India's leading companies is truly inspiring. We are delighted to have him with us today, and I'm sure our person will gain valuable insights from his experience and journey. And now I'm introducing our president, Ms. Jyotia Kalrama. It's my honor to introduce him. So, Ms. Jyotia Kalra is the president of Saxon Society and an advocate on record at the Supreme Court of India, a strong advocate for education and skill development. She is deeply committed to empowering youth through learning opportunities and practical training, paving the way for a more capable and confident generation. So, this was a whole introduction, and now I'd like to request our president to begin the session. Over to you, please. Thank you, Abhishek. Thank you, Sachin. You tried and again you had put a message that I want to introduce again क्योंकि आप निश्चय बुद्धि राजा आज हमारे साथ हैं। निश्चय आपका स्वागत है एक बार फिर सक्षम रोजगार सोसाइटी के इस सेशन में। आपका प्रोफाइल इतना अच्छा है कि बहुत सारे सवाल जब मन में होते हैं फिर लगता नहीं ये भी पूछ लो ये भी पूछ लो ये भी पूछ लो। तो मुझे लग रहा है कि मैं शुरू में ही आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि जोमेटो क्या करता है, मैकेंजी क्या करता है और ब्लिंकिट क्या करता है। ब्रॉडली हमारे सभी स्टूडेंट्स को आपके द्वारा पता चले कि जोमेटो क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और मैकेंजी क्या है और ब्लिंकिट क्या है। थैंक यू सो मच ज्योतिका मैम एंड एवरीवन मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।
थैंक यू सो मच। तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा जिस्ट दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने अपना करियर मैकेंजी से शुरू किया था। मैकेंजी एक अमेरिका बेस्ड कंसल्टिंग कंपनी है जो बाकी कंपनीज को हेल्प करती है कैसे ग्रो करें। फॉर एग्जांपल मैकेंजी हेल्प करेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को कि आप अपना टॉप लाइन रेवेन्यू कैसे बढ़ाएं, आप अपना कॉस्ट कम कैसे करें, अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं। तो मैकेंजी बेसिकली हेल्प करता है अलग अलग कंपनीज को, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, कि वो अपने बिजनेस को और बेहतर कैसे करें। वो मैकेंजी का सबसे मेजर काम है। और वो टिपिकली किसी भी कंपनी को 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल, इतने टाइम के लिए हेल्प करता है और फिर हेल्प करके आगे बढ़ जाता है। और फिर कंपनी खुद जो सजेशन देता है मैकेंजी, कंपनी वो इम्प्लीमेंट करती है और उसके हिसाब से कंपनी बेहतर हो जाती है। मैकेंजी का ये काम है। उसके बाद मैं गया जोमेटो। जोमेटो, मैं बिलीव करता हूँ कि इस कॉल पे ऑलमोस्ट सभी लोगों ने उसका नाम ज़रूर सुना होगा। बट तब भी जोमेटो से आप अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं। आपके घर के आसपास जो रेस्टोरेंट्स हैं, आप अगर घर पे बैठे हैं, अपने ऑफिस में हैं, कहीं पर भी आप खुद नहीं बना सकते अभी कुछ खाना, या आपका बाहर से खाने का मन है, आपके घर पे गेस्ट आए हैं, आप ऑनलाइन ऐप के थ्रू खाना ऑर्डर कर सकते हैं। रेस्टोरेंट खाना बनाएगा, हमारा डिलीवरी पार्टनर, जोमेटो का डिलीवरी पार्टनर रेस्टोरेंट से खाना पिक करेगा और आपके घर पे या आपके ऑफिस में जहां पर भी आपने ऑर्डर किया वहां डिलीवर कर देगा। आप उसमें चाहे खाने पीने कोई भी, कॉफी मंगाएं, पिज्जा मंगाएं, रोटी दाल सब्जी, अलग अलग जितने रेस्टोरेंट से कुछ भी मंगा सकते हैं। 20 से 25 मिनट, आधे घंटे में वो खाना आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। ये जोमेटो करता है। तीसरा है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट को जोमेटो ने ही खरीद लिया था कुछ 4, 4.5, 5 साल पहले। बट ब्लिंकिट का काम थोड़ा अलग है। करता ब्लिंकिट भी डिलीवरी ही है, लेकिन ब्लिंकिट रोजमर्रा की चीज़ों की डिलीवरी करता है। चाहे वो खाने पीने के किचन का सामान हो, घर का सामान हो, छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, जो भी आप अपने घर के आसपास की दुकानों से लेकर आते हैं सामान, ब्लिंकिट वो सामान अपनी दुकान से 10 मिनट में आपके घर पे डिलीवर कर देता है। चाहे आपको सब्जी चाहिए हो, दूध चाहिए हो, चाहे आपको चार्जर चाहिए हो मोबाइल का, कुछ भी और चाहिए हो, रोजमर्रा का सामान आपके घर पे 10 मिनट में आप ब्लिंकिट से मंगा सकते हैं। इसमें भी सेम है, ब्लिंकिट की अपनी दुकान है, आप ऑर्डर करते हैं, ब्लिंकिट का डिलीवरी पार्टनर वहां से सामान लेता है और आपके घर पे आके आपको दे देता है। सर थैंक यू निश्चय, ये सारा डिटेल में बताने के लिए, मतलब ब्रॉडली बताने के लिए। और ब्लिंकिट तो जो ना आज की जिंदगी का आपका एक अहम हिस्सा हो गया है। मतलब ऐसा दिन नहीं बीत सकता कि आपके घर में, परिवार में, आपके दोस्तों में बात करते करते ब्लिंकिट का जिक्र ना आए। ये मतलब इतना ऐसा इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, डेली रूटीन लाइफ हो गया है कि बहुत जबरदस्त असर है ब्लिंकिट का। अब थोड़ा ब्लिंकिट की वर्किंग को अगर आप बताएं, कैसे जैसे हम सामान ऑर्डर करते हैं तो ये अवेलेबल है या ये नहीं अवेलेबल है, और 10 मिनट में आ जाता है। तो क्या वो जो अवेलेबिलिटी का जो हमें मिलता है, वो लोकल, वो दुकान जैसे आपने बताया ब्लिंकिट की, कोई दुकान तो हमें दिखती नहीं ब्लिंकिट की, तो वो ब्लिंकिट कैसे, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है कि कैसे जो कस्टमर चाहता है हम वही ढूंढ पाते हैं और हमें पता चलता है, पर वो आ भी जाता है, वो कैसे कोऑर्डिनेशन होता है? तो ये कैसे काम करता है कि ब्लिंकिट के इस टाइम तकरीबन इंडिया में 2000+ स्टोर हैं। अगर हम हम्म। एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव इसकी बात करें तो 350 से 400 स्टोर हैं यहाँ पर ब्लिंकिट के। और आप हम्म। एकदम सही कह रहे हो कि वो हमें दिखते नहीं है, क्योंकि हम उनको बुलाते हैं डार्क स्टोर। तो वो अच्छा। किसी एक ऐसी लोकेशन में होते हैं जो शायद मेन मार्केट नहीं होगी, किसी पीछे वाली गली में होगी, जहां पर अच्छा। कस्टमर खुद नहीं जा सकता। रीजन उसका बड़ा सिंपल है कि वहां जाकर शॉपिंग अलाउड नहीं है। घर पे बैठे ऑर्डर होना है तो हम मार्केट में दुकान क्यों लें, हम पीछे वाली गली में ले लेंगे। हमें चाहिए हम्म। नहीं कि लोग हमें ढूंढे, क्योंकि दुकान में आके हम्म। खरीद नहीं सकते आप। अब होता क्या है, कस्टमर मोबाइल ऐप खोलता है, उस पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। आप सर्च करते हो कि मुझे मिल्क चाहिए, मुझे सब पालक चाहिए, मुझे एक फ़ोन का चार्जर चाहिए, मुझे एक टूथपेस्ट चाहिए। आपने 4 चीज़ें ऐड करी मोबाइल में ढूंढ के कि कोलगेट का ये वाला टूथपेस्ट दे दो, आधा किलो प्याज दे दो, 1 लीटर दूध हम्म। दे दो। हम्म। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने पेमेंट कर दी। जो आपके घर के पास वाला स्टोर है उसमें ये ऑर्डर चला जाता है। आपके वो टिपिकली आपके घर से 1-1.5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होगा। क्योंकि हम्म। हमारे पास, मैंने जैसा बताया, एनसीआर में 350 400 स्टोर हैं, इंडिया में 2-2.5 हजार स्टोर है। तो हर एक डेढ़ हम्म। किलोमीटर के बाद वो स्टोर आता है। उसके पास आपका ऑर्डर जाता है आपके घर के पास वाले में। वहां पर एक बंदा जो काम कर रहा है उसके मोबाइल पे आ जाता है कि ज्योतिका जी का ऑर्डर आया है ये 3 सामान का। वो स्टोर, उसको पता है स्टोर में कहाँ पड़ा है। वो फटाफट वो सामान इकट्ठा करता है और स्टोर की एंट्री पॉइंट पर एक डिलीवरी पार्टनर जो अपनी बाइक पे रेडी बैठा है उसको पकड़ा देता है।
और डिलीवरी पार्टनर की ऐप पे आ जाता है कि ये ऑर्डर आया है जी ज्योतिका जी के घर से, उनका ये एड्रेस है, ये रास्ता है, मुझे गूगल मैप्स पे दिख रहा है, वो सामान लेकर आपके घर पे 6 से 7 मिनट का एवरेज हमारा ट्रांसपोर्टेशन टाइम है ऑर्डर देने से, जब ऑर्डर हैंड ओवर होता है टू आप तक मिलने का। तो 2 मिनट लगते एक हैं डार्क सामान ढूंढने में और 6 से 7 मिनट लगते हैं सामान डिलीवर करने में। एक डार्क स्टोर पर कितने डिलीवरी पार्टनर्स रहते हैं? जैसे 24 घंटे डिलीवरी है शायद ब्लिंकिट की, हाँ जी। तो कितने डिलीवरी पार्टनर्स एक डार्क स्टोर पे? तो जो हमारा डार्क स्टोर है ना, उसमें 2 तरीके की वर्कफोर्स है। एक जो स्टोर के अंदर काम कर रहे हैं, हाँ। जिनका काम है सामान लाना, सामान इकट्ठा करना, सामान वापस लगाना जब वेयर हाउस से सामान आया है, तो वो तकरीबन एक स्टोर पे 40 से 45 लोग होते हैं। आप ये मान अच्छा। ले 15 से 20 लोग एक शिफ्ट में होते हैं, 3 शिफ्ट ओके। अगर हम चलाते हैं तो 45-50 लोग होते हैं। डिलीवरी पार्टनर किसी एक स्टोर पे 80 से 100 के बीच में रेंज करते हैं, क्योंकि वो पूरा दिन नहीं रहते हैं। वो कोई 4 घंटे करता है, कोई 8 घंटे काम करता है, जैसे उनका मन करे। बट 80 से 100 डिलीवरी पार्टनर एक स्टोर पे ऑन एन एवरेज काम करते हैं। सो एक स्टोर पे मतलब ऑन एन एवरेज 125 लोग 150 लोग काम करते हैं। हाँ जी। तो हाँ जी। ब्लिंकिट अपने आप में बहुत बड़ा एम्प्लॉयर हुआ फिर तो। ब्लिंकिट के अपने डिलीवरी पार्टनर ही कुछ 5-6 लाख हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। ये ओके। डिलीवरी पार्टनर है, जो स्टोर में लोग काम कर रहे हैं वो अलग हैं, और फिर जो हाँ, हेड ऑफिस में हमारे जैसे लोग बैठे हैं वो वो और अलग है। अलग है। वो अलग है। वो अलग ये है। स्टोर्स पे। और एक बार अभी बीच में आपसे ये भी पूछेंगे कि ब्लिंकिट में नौकरी लेनी हो तो क्या उसका तरीका हो सकता है, वो भी हमारी बातचीत में आएगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो वेदर इट्स अ करेक्ट वर्ड, ब्लिंकिट की जो एम्बुलेंस सर्विस है, और मैंने सुना है कि भी वो फ्री है, वो हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा अगर बताएं। मतलब वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बिजनेस स्कोप है, क्योंकि एम्बुलेंस का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है और एम्बुलेंस अवेलेबल होती नहीं जनरली। लोगों का यही शिकायत रहती है कि एम्बुलेंस को फोन किया और एम्बुलेंस नहीं आई। तो उसको जो ब्लिंकिट ने टेकअप किया, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बिजनेस का मॉडल है। उसको थोड़ा सा अगर आप बता पाए। तो एकदम सही बात है। वो हम एम्बुलेंस सर्विस जो चलाते हैं वो फ्री में, फ्री टू कस्टमर है, हम कुछ भी हम्म। चार्ज नहीं करते हैं कस्टमर को। वो पार्ट ऑफ आर CSR एक्टिविटी है। ओके। इसका आइडिया कैसे आया था कि जब हमने 10 मिनट में सामान देना शुरू करा तो लोगों ने बोला कि यार सामान तो ठीक है, एम्बुलेंस भी मिलनी चाहिए 10 मिनट में। आज की हम्म। डेट में उससे लोगों की जान बच सकती है। तभी हम्म। हमें आइडिया आया कि सही बात है, हमें इस पे काम करना चाहिए। तो अभी हम ये NCR में और बॉम्बे में कुछ जोग्राफीज में करते हैं। इसमें चैलेंज भी बता देता हूँ आपको कि हम चाहते हैं कि हम और कर पाएं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी एम्बुलेंस में जो एक एक पर्सन है, पैरामेडिक जिसे बोलते हैं, वो ट्रेंड टू आर स्टैंडर्ड है। नॉर्मल हम्म। एक आप एम्बुलेंस बुलाएंगे किसी छोटे हॉस्पिटल से जो आपके घर के पास होगा, उससे जो इंसान आ रहा है वो ट्रेंड या केपेबल नहीं है उस पॉइंट पर आपको CPR देने के। कुछ जरूरत पड़े तो क्या, कौन सी दवाई देनी है फटाफट इमरजेंसी में, हम्म। कौन सा ऑक्सीजन हम्म। लगाना है, क्या करना है। तो हमने ये इंश्योर किया है कि हम जहां पर भी जाएं, एक तो 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचा पाएं, और दूसरा हम्म। जो हमारा स्टाफ है, जो पैरामेडिक स्टाफ जिसे बोलते हैं, उसकी पहले ट्रेनिंग होती है पूरी 2 से 3 महीने कि दे हम्म। शुड बी इक्विप्ड कि अगर उन्हें इमरजेंसी में कुछ हैंडल करना है तो दे आर 100% एबल टू हैंडल दैट इमरजेंसी प्रोसीजर। इसलिए हम धीरे धीरे उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। NCR बॉम्बे में आज वो लाइव है, और कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां पर हमारे स्टोर्स हैं वहां वहां पर हम उसको लाइव कर पाएं। नहीं, सड़कों पे दिखती है ब्लिंकिट एम्बुलेंस, हाँ जी। तो विजिबल है। यस 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 And it यस। is, if it's a CSR initiative, so probably it will continue to be free. अभी तो यही प्लान है, हम उससे पैसा बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो हम अच्छा। CSR की तरह ही कर रहे हैं, और एक्सपैंड करते रहेंगे उसको धीरे धीरे। तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल अ, यस। ये वाले उसमें भी। आ, ये तो जैसे आपने अपनी वर्क प्लेसेस का बताया, और सभी बच्चों का ये बहुत बड़ा सपना रहता है कि वो IIT जाएं, वो IIM जाएं। तो थोड़ा IIT रुड़की का वो, या IIT का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और IIM क्या है, थोड़ा सा हमारे बच्चों के लिए वो भी बताएं। हाँ जी। तो IIT से इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा करते हैं लोग। IIT में 90% बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ एक दो कोर्सेज और भी हैं, बट मेजॉरिटी इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, जिसके लिए 11वीं 12वीं में लोग साइंस लेते हैं, नॉन मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। हमारे टाइम पे वो एग्ज़ाम अलग होता था, अब आई थिंक एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में कुछ हो गया है, JEE मेंस JEE एडवांस, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसका नाम है। तो 11वीं 12वीं में पढ़ाई करनी है, उसके बाद JEE का एग्ज़ाम देना है आपको। वो 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम है, पहले फर्स्ट पार्ट क्लियर करना है, फिर सेकेंड पार्ट क्लियर क्लियर करना है।
उसकी रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। इंजीनियरिंग में इंडिया में टॉप कॉलेजेस में आता है आईआईटी। उनकी बहुत सारी लोकेशंस हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, एंड अब तो आई थिंक काफ़ी सारे और आ गए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन फिर आप अपनी रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है और कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग भी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, बहुत सारी और तरीकों की है। तो बेसिस आपकी रैंक पे आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट करते हैं। 4 या 5 साल का टिपिकली कोर्स होता है। 4 साल में बीटेक होती है, 5 साल में बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री कोर्स होता है, जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपकी साथ में हो जाती है, तो 1 साल बच जाता है। कोर्स पूरा इंजीनियरिंग रिलेटेड टेक्निकल होता है। आप 4 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर आप वहाँ से नौकरी लगाते हैं, या आप हायर स्टडीज़ के लिए आगे परस्यू करते हैं, या तो टेक्नोलॉजी में ही, या फिर आप किसी और फील्ड में अगर जाना चाहें तो उसके बाद फिर आप किसी और फील्ड में जाते हैं। तो मेजरली आईटी का ऐसे रहता है। दूसरा शायद हम्म। आपने आईएम का पूछा था। आईएम का, हाँ जी। आईएम मैनेजमेंट रिलेटेड एमबीए का कोर्स होता है आईएम में। अगेन आईएम भी आईआईटी की तरह ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था वो, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट रन है। अगेन बहुत सारी हम्म। हैं इंडिया में, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकटा, ये टॉप के 3 माने जाते हैं। इसके बाद शिलोंग, कोझिकोड, इंदौर, शिलोंग, और बहुत सारे आ गए हैं अब। ये आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं यहाँ से। ग्रेजुएशन आपने कुछ भी करी हो, चाहे इंजीनियरिंग करी हो, आर्ट्स में करी हो, कॉमर्स में करी हो, बीकॉम, बीएससी, बीए, कुछ भी कराओ, उसके बाद आप ये कर पाते हैं 3 साल की ग्रेजुएशन, 4 साल की, 5 साल की। उसके बाद कुछ लोग आपसे वर्क एक्स भी मांगते हैं कि यार आपने कहीं नौकरी करी हो। कुछ कहते हैं कि बिना नौकरी के भी हमें चलेगा। वो हर आईएम का अलग अलग क्राइटेरिया है, हर एमबीए हम्म। कॉलेज का अलग क्राइटेरिया है। यहाँ आप 2 साल का कोर्स करते हैं जहाँ आपको मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है। मैनेजमेंट में प्राइमरीली फाइनेंस की चीज़ें होती हैं, एचआर की चीज़ें होती हैं, अकाउंट्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ऑपरेशंस रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ये 6-7 मेजर फील्ड्स हैं जिसकी पढ़ाई होती है यहाँ पर। 2 साल का आप ये कोर्स करते हैं। उसके बाद टिपिकली लोग यहाँ से, ये टिपिकली लोग नौकरी लेने के लिए करते हैं। इसके बाद ज़्यादातर लोग पढ़ाई करने नहीं जाते हैं। लेस देन 5% लोग आगे कुछ पढ़ाई करने जाएंगे, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है। तो लोग इसके बाद फिर अच्छी कंपनी में नौकरी लगाते हैं और फिर वहां से आगे अपना करियर ग्रो करते हैं। और एक निश्चय, अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही थी इंडियन एक्सप्रेस में, तो वो बोल रही थी कि, और वो कोई भी बोलता है कि एम्प्लॉय जो एजुकेशन है वो एम्प्लॉयबिलिटी लिंक्ड नहीं है। डिग्रियां हैं, एक के बाद एक डिग्री है, पर वो एम्प्लॉयमेंट रेडी प्रोफेशनल नहीं बनाती। और जब हम आज बात कर रहे हैं, जैसे आपने आईआईटी आईएम का बताया, ये सभी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट्स हैं। आईआईटी भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और आज तक इनकी जो रेपुटेशन है, या इनसे पास जो ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनकी मार्केट में डिमांड भी ज्यादा, और कहने की बात है कि आप अगर वहां से है तो आपको नौकरी मिल जाएगी, या एक अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी आपके पास स्किल हो। वेयर एज वहीं प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं या वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उनकी उस तरह की आउटपुट नहीं है। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट में, एक मैं प्रस्तावना के तौर पर बात कर रही हूँ। और वैसे जहां भी हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल्स या सरकारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं आता कि भैया वो सरकारी हैं, तो वो मतलब ऐसे ही होगा, काम चलाऊ होगा। पर अगर हम इन संस्थानों को देखें, तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में भी उनकी एक पहचान है, उनको एक प्रकार का रुतबा दिया जाता है। तो ये शैक्षिक संस्थान सरकारी होते हुए इतना बेहतर एम्प्लॉयबिलिटी या एम्प्लॉयमेंट रेडी प्रोफेशनल क्रिएट कर पाते हैं, इसको आप थोड़ा सा मतलब, क्योंकि आज हम जब आज का जो दौर चल रहा है वो सीजेपी मूवमेंट के कहिए या अन्य कारणों के साथ लेते हुए, स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, शिक्षा के बाद नौकरी, एम्प्लॉयबिलिटी, इस पे बहुत ज्यादा गहन चर्चा परिचर्चा प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, मंत्री भी कर रहे हैं, और आम सब लोग भी कर रहे हैं। और उसको बेहतर होना चाहिए, ऐसा भी सबके उसमें आता है। तो अब मेरा कहने का मतलब है, अगर सरकार इतने बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट चला सकती है, तो स्कूलों को क्यों नहीं उस तरह से बेहतर किया जा सकता? या इनके बेहतर होने के पीछे क्या कारण आप देखते हैं, मतलब वो थोड़ा सा हम सबके साथ शेयर करें। जी एकदम सही बात है। स्कूलों को भी बेहतर होना चाहिए। पर मल्टीपल रीजंस हैं कि ये जो हमारे हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स मैं हम्म। बोलूँगा, चाहे वो आईआईटी हो, आईएम हो,
या इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, या ऐसे और भी कॉलेजेस हैं जो सरकार चलाती है, जो आज की डेट में आप सही कह रहे हो कि सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर भी इनका नाम है हम्म। कि अगर हम्म। किसी ने यहाँ से पढ़ाई करी है तो उसको एक रेप्यूटेड अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उसको। हम्म। तो मेरे हिसाब से दो तीन कारण है। सरकार ने भी आई थिंक बहुत ज्यादा फोकस करा है इन कॉलेजेस पे, हमेशा से रहा है ओके। पिछले 50 60 70 80 सालों से। हम्म। इन्वेस्टमेंट जो सरकार ने शायद हायर एजुकेशन में इनमें करा है वर्सेस जो शायद स्कूलों में करा है, उसमें जरूर थोड़ा गैप रहा होगा सरकार की तरफ से। दूसरा, इनका एंट्रेंस एग्जाम ही इतना टफ है ओ। किसी भी सरकारी कॉलेज का, तो जो हम्म। बच्चा पढ़ने आ रहा है इन जनरल वो यहाँ पर, एक लेवल का है। उसकी क्वालिटी ही शायद थोड़ी सी अलग है वर्सेस जो एक प्राइवेट में जा रहा है, जो स्कूलों में ट्रू नहीं है। क्योंकि शायद हम्म। स्कूलों में सरकार का काम है सबको एजुकेशन देना, यहाँ पे हम्म। सरकार का काम है एक अच्छा एजुकेशन, अच्छा इंस्टीट्यूट चलाना जो शायद हम्म। सबके लिए ना हो, बट एक हम्म। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके बच्चा आ रहा हो। तो आई हम्म। थिंक वो कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, शायद बच्चा भी जो आ रहा है वो किस कैपेबिलिटी, किस सोशल स्टेटस का है, उसके घर पे क्या हालात हैं, वो कितनी पढ़ाई कर सकता है, कितना टाइम दे सकता है, एक्सेट्रा, जिसकी हम्म। वजह से आई थिंक ये हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट बेहतर तरीके से फिर भी चला पाई है। हम्म। तो शायद स्कूलों में भी कुछ काम और होना जरूरी है, बट वहाँ पे आई थिंक प्रॉब्लम भी थोड़ी अलग है सरकार के लिए। हम्म। और अब ये सवाल आता है कि किस समय पर हमें अपने कैरियर के मतलब जो बच्चों को कैरियर क्या चुनना चाहिए, नौकरी कैसी करनी चाहिए, किस स्टेज ऑफ देयर स्कूल लाइफ इसके ऊपर उनको काम करना शुरू करना चाहिए, बच्चों को या उनके पेरेंट्स को किस स्टेज से वो शुरुआत हो जानी चाहिए। देखिए आजकल तो अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है, हमारे टाइम पे तो फिर भी काफ़ी टाइम हो गया, हम्म। हमें तो 12वीं करे हुए 15 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो बट आज की डेट में मुझे लगता है कि अवेयरनेस काफ़ी है, तो बच्चा 8वीं 9वीं में कुछ कुछ सोचना शुरू कर देता है कि मैं क्या 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 फील्ड्स हैं, मेरे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, मेरा बड़ा भाई बहन क्या कर रहा है, मेरे पड़ोसी में अगर कोई हैं जो थोड़े बड़े हैं वो क्या हम्म। कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सीरियसली इस पे सोचना है तो आई थिंक 11वीं मेरे हिसाब से सही टाइम है प्रिपरेशन या कुछ सोचने का कि मुझे किस तरफ आगे जाना है। जब आप 10वीं के बाद अपनी फील्ड चूज करते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, उसमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तब आई थिंक एक पहला रुझान बनना शुरू होता है कि यार मुझे ये ज़्यादा पसंद है, ये कम पसंद है। तब आप कुछ हम्म। कुछ सोचना शुरू करते हैं, तब आप एक डिसीजन लेते हैं कि मुझे क्या करना है। तब आप एक आइडिया बना सकते हैं, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं कि किस तरीके की नौकरियां हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे आपको पता हो। तो उस टाइम पे हम्म। जो आपको पसंद है आप वो लीजिए। 11वीं 12वीं में और आप लोगों से मिलेंगे और पता चलेगा, कॉलेज जाएंगे और पता चलेगा। तो वो तो शायद चेंज होता ही रहेगा आपका। आप आज सोचेंगे हम्म। 11वीं में मुझे शायद लॉयर बनना है, 12वीं में जाके लगेगा कि नहीं यार लॉयर नहीं, मुझे तो सीए करना है। फिर आप हम्म। अकाउंटिंग करेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार सीए भी नहीं बनना, अब तो मुझे एमबीए करके नौकरी करनी है। तो वो चेंज होता रहेगा, बट कुछ एक अपने मन में मोटा मोटा आइडिया कि मुझे ये पसंद है, वो मुझे लगता है कि 11वीं से बच्चे को सोचना शुरू कर देना चाहिए सीरियसली। थोड़ा आइडिया उससे पहले 8वीं 9वीं 10वीं में आइडिया लगा लो और 11वीं से थोड़ा सीरियस हो जाओ। और मुझे आपका ये पॉइंट या इनसाइट बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आपने बोला कि आपका चेंज होता रहेगा। आप सोचो कि मैं वकील बन जाऊं, मैं सीए बन जाऊं। हम जैसे एक आम व्यक्ति इसको लगता है कि बड़ा फ्लिकर माइंडेड है, ये तो स्टेबिलिटी नहीं है। पर आपने तो बोला कि ऐसा चेंज होता रहेगा। इसको थोड़ा सा और आप एलोबरेट करें, हमारे जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं कि उनको लगता है कि अब एक ये कर लिया, शुरू कर दिया, फिर उनको लगता है कि हमें चेंज करना है। तो उसको कैसे आपने तो बड़ा पॉजिटिवली उसको रखा, तो उसको थोड़ा सा और मुझे लगता है एक बार आप बताएं बच्चों के लिए। मतलब मेरा ये पॉइंट था कि चेंज करना सही है, बट एक एज तक या शायद एक हम्म। लिमिट तक। आप हर 6 महीने में अगर बोलें कि नहीं मैं ये नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ, मतलब मैं हम्म। उसकी तारीफ उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। हम्म। अब मेरा ये हम्म। पॉइंट है कि 11वीं में आपको लिमिटेड ही एक्सपोजर है, आपको शायद हर हम्म। चीज़ नहीं पता कि हम्म। क्या अपॉर्चुनिटी है। जितना पता है आप उसके हिसाब से एक अपना डिसीजन लेंगे, फिर 2 साल मेहनत करेंगे, आप कॉलेज जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, आपको और पता चलेगा कि यार हम्म। ऐसा भी हो सकता है, ये भी कर सकता हूँ, ये भी ऑप्शन है। तो शायद आपका चेंज हो जाए, शायद चेंज ना हो, बट तब हम्म। चेंज करने का टाइम है आपके पास। ठीक है। बट एक टाइम के कभी तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ यार मुझे ये करना है, ठीक है। फिर उसमें आपको लग के मेहनत करनी पड़ेगी। तो मतलब 20-21 साल तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने कोई 16 साल की उम्र से सोचना शुरू किया और वो 4-5 साल के मियाद में आपका हो जाना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है। बिल्कुल, यस। तो मतलब ये भी सबके लिए है कि ये नहीं है कि आप सारी उम्र सोचते ही रहो कि अब ये कर लेते हैं। और निश्चय जैसे साइंस के स्ट्रीम में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस रहती हैं, थोड़ा सा वो बताइए कि क्या क्या जब हम साइंस चूज करते हैं या साइंस के फील्ड में जाते हैं तो हमें क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। देखिए साइंस में दो चीज़ें तो आई थिंक सबको पता है, जो बहुत सालों से चलती आ रही हैं, एक डॉक्टर एक इंजीनियर।
MBBS कर लीजिए डॉक्टर बन जाइए, B.Tech कर लीजिए इंजीनियर बन जाइए। हम्म। बट ये तो आई थिंक सबको पता ही है, ये तो बिल्कुल कर ही सकते हैं, ये अच्छी ऑप्शन है आज भी। बट ये ओनली ऑप्शन नहीं है। अब न्यू एज पिछले 10-15 सालों में बहुत सारी और नई चीज़ें भी आ गई हैं, जहाँ पर आई थिंक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज अब एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अगर हम MBBS की बात करें तो उससे रिलेटेड फिजियोथेरेपी है, उससे रिलेटेड नर्सिंग है, उससे रिलेटेड B.Pharma है, उससे रिलेटेड बायोटेक की फील्ड है, लैब टेक्नीशियन है। ये सारी जो फील्ड्स हैं ये अप एंड कमिंग है, जो पिछले 10-15-20 सालों में आई हैं। फिजियोथेरेपी का हम्म। एग्जांपल लें तो शायद लोगों ने पढ़ा हो कि 20-30 साल बाद इंडिया में एजिंग पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। हम्म। 2050 तक इंडिया में पीपल अबव 50 ईयर्स 60 ईयर्स ऑफ द एज बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और हम्म। वो लोग होंगे जो आज हमारे जैसे हैं, जो आज 30 साल के लोग हैं। तो हम्म। इन्होंने अपने करियर में डिसेंट पैसा भी कमाया होगा, तो इनकी परचेसिंग पावर भी होगी, बट इनके साथ ओल्ड एज की प्रॉब्लम होगी। तो फिजियोथेरेपी तो ओल्ड एज में आज की डेट में अच्छी बात नहीं है, बट हर इंसान को चाहिए। थोड़ा बहुत किसी का घुटना दर्द, इंडिया में ये प्रॉब्लम तो सबको है, कहीं पर कुछ हम्म। दर्द, कहीं पर कुछ और प्रॉब्लम। तो फिजियोथेरेपी फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छी फील्ड है जो आगे और ग्रो करने वाली है। फिजियोथेरेपी आप स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं आज की डेट में फॉर एग्जांपल। अब हमारी पूरी क्रिकेट टीम के साथ, हॉकी टीम के साथ, बैडमिंटन टीम के साथ डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो टीम का देख रेख में काम करते हैं। तो ऐसे ही नर्सिंग है, बायो लैब टेक्नीशियन, जैसे मैं एक बता रहा था आपको कि स्कूल्स में लैब टेक्नीशियन तो होते ही हैं जो हमने सब देखे ही हैं। अब डायग्नोस्टिक लैब्स इंडिया में लास्ट 5 साल में बहुत बढ़ गई हैं। डायग्नोस्टिक लैब जैसे कि लाल पैथ लैब है, स्टार लैब्स है, पैथ काइंड है, इन सब में लैब टेक्नीशियन चाहिए। जितने जितने और टेस्ट होंगे उतने उतने और लैब टेक्नीशियन चाहिए। तो ये सब डॉक्टर तो एक सबको पता है, बट ये सब और भी ऑप्शंस हैं। जैसे अब इंजीनियरिंग में भी आजकल सिविल इंजीनियरिंग पहले चलता था, फिर बीच में कंप्यूटर साइंस का ट्रेंड आ गया था। कंप्यूटर साइंस तो अभी भी चल रहा है, सिविल इंजीनियरिंग हैज आल्सो पिक्ड अप अगेन। हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना हो रहा है, नॉट ओनली फॉर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, बट गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में, उसमें सिविल इंजीनियरिंग की अगेन वापस जरूरत है। बाकी आप ट्रेडिशनल तो BSc तो कर ही सकते हैं, BSc करके आगे पढ़ाई करके MSc PhD आप रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। आप BSc करके टीचर बन सकते हैं, लेक्चरार बन सकते हैं। अ, आप इन्वायरमेंटल की तरफ, अगर जिसको शौक है वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट वाली फील्ड में जा सकता है। एग्रीकल्चर में पढ़ाई करके सरकारी और प्राइवेट नौकरियां अगेन दोनों ले सकते हैं आप। तो साइंस के बाद ऑप्शंस तो ट्रेडिशनल के सिवाय भी बहुत सारी और नई एज ऑप्शंस आ गई हैं काफी, जिनमें अच्छे करियर्स हैं। अब हमारी जो हम रोजगार के साथ काम करते हैं, हम सपोर्ट भी करते हैं स्कॉलरशिप। तो अभी दो बच्चों को, शिखर और रोशनी, दोनों को नीट का उन्होंने दिया था एंट्रेंस। BSc नर्सिंग में उनका एडमिशन आया है। तो दोनों को हमने स्कॉलरशिप का प्रोसेस है, एक को तो दे दिया, अगले को हम करने वाले हैं। तो जैसे आपने बताया, और नीट के एग्जाम से BSc नर्सिंग, और काफी स्कोप है मुझे लगता है। डॉक्टर से पहले एक नर्स को नौकरी, MBBS डॉक्टर और एक नर्स, शायद नर्स को नौकरी की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बेटर होंगी, बिल्कुल, मतलब आप अच्छे हॉस्पिटल में कहीं भी पता करिए, हर हॉस्पिटल को नर्स की जरूरत है आज। हर जितनी हॉस्पिटल को नर्स की नर्स। जरूरत है उससे कम नर्सेज अवेलेबल हैं। हाँ। तो और वो दोनों, जॉब हमेशा रहेगा। और मेल है, एक एक लड़का मेल है, जो एक बड़ा वैसे कन्वेंशनल था कि नर्स सिर्फ फीमेल्स के लिए। तो एक मेल बच्चा है और 12th करके BSc नर्सिंग करने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, मतलब आपने बताया, और फैक्चुअली मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम रोजगार में ऐसे इन दो बच्चों को हम स्कॉलरशिप फीस का अंडर प्रोसेस है। और अब कॉमर्स से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, निश्चय। ये कॉमर्स के बाद सबसे कॉमन तो B.Com है, जो लोग टिपिकली करते हैं, जिससे आप अकाउंटिंग रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड नौकरियां ले सकते हैं। जो कि हर कंपनी में सालों से चला आ रहा है और फ्यूचर में भी चाहिए होगा। चाहे वो कंपनी 20 लोगों की हो, 200 की हो, 2000 की हो, हर एक को अकाउंटिंग तो करनी ही है। एक छोटी सी दुकान को भी अकाउंटिंग करनी होती है, और हमारी जैसे ब्लिंकिट जैसी कंपनी को भी अकाउंटिंग करनी है। गूगल को भी अकाउंटिंग करनी है कि यार कहाँ से कितना पैसा आया, कितना गया, मेरा क्या प्रॉफिट हुआ। तो अकाउंटिंग की नौकरियां पहले भी थी, आगे भी हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है वैसे वैसे नौकरियां और बढ़ेंगी। तो हम्म। B.Com के बाद अकाउंटिंग रिलेटेड आप नौकरियां तो बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिग्री कर सकते हैं, CA और CS जैसा होता है, चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी। उसमें अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, प्रोफेशनल जॉब्स हैं उसके अंदर। आप टीचिंग रिलेटेड में भी जा सकते हैं, अगेन B.Com करके M.Com कर लीजिए, और पढ़ाई करनी है तो PhD कर लीजिए। नहीं तो टीचिंग करके आप स्कूल में टीचर लग सकते हैं, कॉलेज में लेक्चरर, प्रोफेसर
आप लग सकते हैं। इवन लॉ कर सकते हैं आप, बीकॉम या कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद आप फिर उस फील्ड में स्पेशलाइज कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड, अगर आप लॉ की तरफ जाना चाहें। होटल मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल एक अच्छा ऑप्शन है हम्म जो लोग कॉमर्स लेते हैं। जैसे जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटल्स इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी बूम कर रही है, तो उनको अच्छे होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स चाहिए टू रन देयर होटल्स। तो वो हम्म होटल मैनेजमेंट एक अगेन एक अच्छा कोर्स है। एक और अच्छी ऑप्शन लॉजिस्टिक्स है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, ये फैक्ट है कि लॉजिस्टिक्स ऑल्सो ग्रोज विद इट, क्योंकि जहां हम्म सामान बन रहा है और जहां कंज्यूम हो रहा है वो सेम हम्म जगह नहीं है। चाहे वो हम्म खाने का सामान हो, चाहे फैक्ट्रीज का सामान हो, वो हमेशा शहरों से दूर बनता है, बट कंजम्पशन शहरों में होती है। तो वो हम्म पूरा जो उसको मैनेज करता है वो लॉजिस्टिक्स है। ब्लिंकिट की हमने बात करी कि 10 मिनट में कैसे पहुंच जाता है सामान, उसके पीछे पूरा लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क है। तो लॉजिस्टिक्स अगेन एक ऐसी फील्ड है जहां पर आप 12वीं के बाद कोर्स कर सकते हैं, अगर आपने 11वीं 12वीं में कॉमर्स किया है तो वो भी एक हम्म अच्छी और ग्रोइंग ऑप्शन है। हम्म। और लगे हाथ आर्ट्स का भी आप स्कोप बता दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां से हम आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ तो मेजरली मैंने देखा है बच्चे साइंस और आर्ट्स, कॉमर्स जनरली स्कूल्स में नहीं है, मतलब साइंस और आर्ट्स ही सब्जेक्ट है। तो आर्ट्स के लिए क्या क्या ओपनिंग्स हो सकती हैं? जी, आर्ट्स में आप ट्रेडिशनल बीए वगैरह किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहें तो टीचर या प्रोफेसर लग सकते हैं फॉर एग्जांपल। हायर एजुकेशन में जाना चाहें तो आप उसी में एमए और पीएचडी कर सकते हैं, कॉलेज में लेक्चरर लग सकते हैं। आर्ट्स में एक अच्छी और ऑप्शन जो है वो एचआर है फॉर एग्जांपल। हम्म जैसा कि मैंने फाइनेंस रिलेटेड बताया था, एचआर भी सेम है कि हर कंपनी को एचआर के लोग चाहिए। कि यार ब्लिंकिट में अगर 5,000 एम्प्लॉई हैं तो इनको मैनेज करने के लिए मुझे एचआर चाहिए, एचआर की टीम चाहिए। एक एचआर नहीं कर हम्म सकती मैनेज या कर सकता, एक पूरी टीम चाहिए एचआर की। नए हम्म लोग रिक्रूट करने हैं उसके लिए एचआर चाहिए, तो एचआर एक हम्म ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे हम बोलते हैं, बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है, बहुत अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, और अच्छा काम है। तो वो कर सकते हैं। लॉ अगेन आर्ट्स के बाद लॉ की ऑप्शन तो खुली है, बहुत लोग आर्ट्स लेने के बाद लॉयर बनते हैं, लॉ में जाते हैं। आप सरकारी नौकरियों वाला एग्जाम दे सकते हैं आर्ट्स के बाद, वो भी आई थिंक लोगों को काफ़ी रहता है, चाहे वो बैंक से रिलेटेड नौकरियां हो या स्टेट कमीशन की नौकरियां हो, आईएएस का एग्जाम देना हो, वो कर सकते हैं। आप राइटिंग रिलेटेड जॉब्स में जा सकते हैं, अगर आपको मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, एडिटोरियल लिखना, इस टाइप की फील्ड पसंद है, कंटेंट राइटिंग, जर्नलिज्म, इधर जा सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज फॉर एग्जांपल पढ़ सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज हम्म एक अच्छी ऑप्शन है, जैसे जैसे एमएनसीज इंडिया में आ रही हैं और इंडियन कंपनीज अपने ऑफिसेज खोल रही हैं बाकी कंट्रीज में, तो उनको फॉरेन लैंग्वेज के लोग चाहिए होते हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। फैशन में जा सकते हैं, निफ्ट पर्ल ऐसे करके कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप फैशन रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिर आप चाहे कपड़े की डिजाइनिंग, फैशन सिर्फ कपड़े की डिजाइनिंग नहीं है, जूते की डिजाइनिंग अलग है, फर्नीचर की डिजाइनिंग अलग है, लाइट का डिजाइनिंग अलग है। तो फैशन रिलेटेड आप डिजाइनिंग ये सब कोर्सेज कर सकते हैं। बाकी वोकेशनल चीज़ें भी हैं, जैसे किसी के घर की अगर ऑप्शन जरूरत हो कि मुझे वोकेशनल करके जल्दी अर्न करना है, तो वोकेशनल जॉब्स भी हैं जहाँ पर इंसान ट्रेनिंग लेके फटाफट नौकरी शुरू कर सकता है, तो वो ऑप्शंस भी हैं। अच्छा, एक निश्चय आपसे ये अगला सवाल ये है कि क्या एक जो 12वीं पास बच्चा होता है फिर वो ग्रेजुएशन करता है पता बता करके, क्या उसमें इतनी क्षमता है, क्या वो ये कर सकता है कि नौ अपने कैरियर पाथ को ज्वाइन करने से पहले या उस कॉलेज या उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले वो ये वेरीफाई कर सके कि जो पढ़ाई मैं कर लूंगा उसके बाद उसमें नौकरी मिलने की संभावना कितनी है? क्या ये जजमेंट एडवांस में हो सकती है और क्या ये करनी चाहिए? मतलब आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं। जी बिल्कुल, करी जा सकती है और करनी भी चाहिए। शायद वो 100% एक्यूरेट नहीं होगी मैं बोलूँगा, बट एक 70-80% आइडिया आपको लग जाएगा कि यार जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ उससे किस टाइप की नौकरी लगती है कि नहीं लगती है। और अगर लगती है तो मोटा मोटा किस कहाँ लगती है, कितने पैसों की लगती है, ये आइडिया आप ज़रूर लगा सकते हैं। 2-3 सोर्सेज हैं ये पता करने के। हम्म अगर वो कुछ कॉलेजेस हैं जो खुद ही अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं ऑनलाइन कि यार लास्ट ईयर ये बच्चे आए थे पढ़ने, 100 लोग आए थे, 100 में से 80 की नौकरी लगी, और उनकी ये टॉप 5 कंपनीज में नौकरी लगी, इतने लाख की नौकरी लगी। तो या तो कॉलेज हो सकता है खुद पब्लिश करे। अब हर कॉलेज शायद खुद पब्लिश नहीं करता, तो उधर आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। आपको उसी कॉलेज के सीनियर लोगों से बात करनी पड़ेगी, बेस्ट आइडिया आपको वो खुद दे देंगे कि जो बैच अभी अभी पास आउट हुआ है, जो कोर्स आप करने वाले हैं जिस कॉलेज से, वो लोग कहाँ गए,
क्या नौकरी लगी, उनकी कॉलेज ने कितनी मदद करी या उनको खुद लगानी पड़ी, किस टाइप की नौकरी लगी, कितने पैसों की नौकरी लगी। मेहनत लगेगी थोड़ी, बट लोग हेल्प कर देते हैं, लोग जरूर बता देते हैं, उसके बेसिस पे आपको आइडिया जरूर लग जाएगा कि, और लगाना भी चाहिए मेरे हिसाब से, इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए आपकी। तो ये तो बड़ी मेहनत वाला काम है। आई डोंट नो कितने परसेंट लोग करते हैं ये। करते तो शायद नहीं है ज्यादा लोग, बट मुझे लगता है कि करना चाहिए। एंड स्पेशली हाँ। अगर आपके पास तीन चार ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि यार ये तीन जगह जा सकता हूँ मैं, इसमें से कहाँ जाऊँ, तो हम्म। आपको कुछ तो आइडिया लगाकर वो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। और बेस्ट आइडिया आपको वहाँ जो लोग पढ़ रहे हैं या अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, वहाँ के लोग ही हम्म। आपको बेस्ट आइडिया दे सकते हैं कि किस टाइप का काम है, किस टाइप की नौकरी है, और कितने पैसों की नौकरी है। और करनी हम्म। चाहिए वो मेहनत, वो आपने 3 या 4 साल बिताने हैं वहां पर, 1-2 हफ्ते की मेहनत करनी भी पड़ गई तो वर्थ है वो मेहनत। और वही निश्चय, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट आपने बात बताई है कि हमें एक बार चाहे बच्चे करें या उनके पेरेंट्स करें, वेरीफाई जरूर करना चाहिए कि जहाँ पे वो एजुकेशन लेने जा रहा है उसकी आउटपुट कैसा है। अब जैसे ये इंस्टीट्यूट हमने आईआईटी आईआईएम की बात करी, तो जग जाहिर है कि उसका है, पर जहां पर ऐसा नहीं है तो हाँ, एक बार आपको कंफर्म जरूर कर लेना चाहिए। और एक एक बहुत वर्ड यूज होता है ना, पैशन। मैं बहुत पैशनेट था। और नौकरी, उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है? क्या हमें वो काम करना चाहिए जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ, मुझे अच्छा लगता है, जैसे म्यूजिक अच्छा लगता है या खेलना अच्छा लगता है या डांस अच्छा लगता है, या फिर नौकरी नौकरी के हिसाब से की जाती है, पैशन से अलग या पैशन के साथ हो सकती है, या फिर दोनों चीजें भी हो सकती हैं। एकदम सही बात है। आई थिंक पिछले कुछ सालों में पैशन वाला हाँ। यंगस्टर्स में बहुत आ गया है कि बहुत मेरा पैशन बहुत। ये है तो मुझे ये करना है। हाँ। देखिए, पैशन अच्छी बात है, पैशन इज समथिंग जो करने में आपको मजा आए, जो करने की आपकी चाह हो अंदर से। हम्म। क्या वो आपको पैसे कमा के दे सकता है कि नहीं दे सकता, वो सेकेंडरी बात है। हम्म। तो आपको वो जजमेंट जरूर लेना है कि यार मेरा पैशन है क्रिकेट खेलना, क्या मैं इतना अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ कि मैं इससे पैसा कमा सकता हूँ। अगर तो आपको हम्म। लगता है कि हाँ, इससे मैं इतना हम्म। पैसा कमा सकता हूँ कि मेरी घर चल जाएगा, मेरे अगले 30 साल की, मैं 25 साल में शुरू करूंगा, 60 साल तक मैं इससे इतना पैसा कमा पाऊंगा हम्म। जो मैं कहीं और कमा पाता, तो शायद फिर भी आप उसे परस्यू कर सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज मुझे ये पसंद है इसलिए मैं हम्म। इसको अपना प्रोफेशन बना लूं, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। फर्स्ट एंगल हैज टू बी फाइनेंशियल एंगल, कि क्या ये मेरी हम्म। जिंदगी जितना मुझे पैसा चाहिए, जितना मैं कमाना चाहता हूँ, क्या मैं कमा पाऊंगा या नहीं। अगर मैं नहीं कमा पाऊंगा अपने पैशन वाली फील्ड से, चाहे वो क्रिकेट हो, फोटोग्राफी हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो सकता है वो, तो मैं शायद नौकरी ऐसी कर लूंगा जहां पैसा कमा पाऊं जो उससे अलग हो, और साथ में अपना पैशन परस्यू कर लूंगा। ऐसा तो नहीं है कि हम्म। आपको 24 घंटे ही नौकरी करनी है, आप 8-10 घंटे ऑफिस जाओगे, आप उसके सिवाय अपना 1-2 घंटे पैशन फॉलो करो। जैसे कुछ लोगों को एक्टिंग का शौक होता है, लोग हम्म। नौकरी के साथ साथ ड्रामा क्लासेस लेते हैं, प्ले में पार्ट लेते हैं, लोग पेंटिंग हम्म। बनाते हैं नौकरी के साथ साथ। तो नौकरी के साथ भी ये सब करा जा सकता है। लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे पसंद है इसलिए मैं इसको अपना करियर बना लूंगा, ये मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में शायद सही बात नहीं रहेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये रहेगा कि आप इसमें से कितना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। आपको पैसे की जरूरत है, कोई और तो आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करेगा नहीं। अपने मतलब मेरे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, ना हम सफर से, ना किसी हम नशी से निकलेगा। मेरे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो अपनी मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे ही कमाना पड़ेगा। ये आपका जो मैसेज है। और इसके साथ जब हम नौकरी के लिए जाते हैं तो क्या सिर्फ डिग्री अपने आप में सफिशिएंट है, या फिर जो मुझे नौकरी देने वाला व्यक्ति है, जो मेरा एम्प्लॉयर है, वो क्या क्या देखता है मेरे मेरे भीतर, डिग्री के डिग्री, अलावा? डिग्री इंपॉर्टेंट है बट इकलौती चीज नहीं है। हम्म। डिग्री आपके लिए शायद दरवाजा खोल देगी। हम्म। ज्यादा अच्छी डिग्री है तो 4 दरवाजे खोलेगी, कम अच्छी डिग्री है तो 2 दरवाजे खोलेगी, इतना फर्क होगा। तो डिग्री का काम दरवाजा खोलने का है, उसमें जाकर सक्सीड करना, नौकरी लेना, वो हमारा काम है। जो डिग्री के सिवाय बाकी चीजों से आता है, वो हम्म। अलग अलग स्किल्स हो सकते हैं, नौकरी पे डिपेंड करेगा। कहीं पर कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कहीं पर टेक्निकल स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कहीं पर लीडरशिप स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जैसे जैसे आप अपने करियर में ग्रो करेंगे, कहीं हम्म। पर टीम वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कहीं पर जिसे ओनरशिप बोलते हैं कि यार आपको एक काम दिया गया, क्या आप उसे एंड टू एंड पूरा करके छोड़ते हो या बीच में मैंने थोड़ा सा एफर्ट डाला और हाथ खड़े कर दिए अपने। तो हम्म। ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो कोई भी एम्प्लॉयर देखता है अपने पोटेंशियल एम्प्लॉय में।
तो ये सब स्किल्स बहुत जरूरी हैं। सिर्फ एक डिग्री लेना आपको नौकरी नहीं दिलाता, और डिग्री ना होना से भी ये नहीं है कि मेरे को नौकरी नहीं मिल सकती। हम्म ऐसा नहीं है कि मेरे पास डिग्री नहीं है तो अब जिसके पास डिग्री है उसी को मिलेगी और मुझे नहीं मिलेगी, हम्म ऐसा बिल्कुल नहीं हम्म है। आप हम्म मेहनत करोगे, आपके पास ये 2 3 4 स्किल होंगे जो उस नौकरी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप हम्म बिल्कुल वो नौकरी कर पाओगे। और उसके बाद तो फिर आप जैसे जैसे मेहनत करते हो, एक बार आप किसी कंपनी में घुस गए, अब आज मैं ब्लिंकिट में काम कर रहा हूँ, उनको आज हम्म मतलब नहीं है कि मैंने कौन सी डिग्री करी थी, कौन सी कितने नंबर आए थे मेरे। अब इस साल मैंने ऑफिस में अच्छा काम किया तो अगले साल मेरा प्रमोशन होगा, मैंने नहीं किया तो नहीं होगा। हम्म अब डिग्री का रोल खत्म हो चुका है मेरे करियर में। हम्म। तो एक बार घुसना है, काम करना है, मेहनत करनी है, ये स्किल्स डेवलप करने हैं, और फिर आप आगे बढ़ते जाइए। और ये जो सब स्किल्स आपने बताए, ओनरशिप के स्किल्स और अन्य अन्य जो स्किल्स बताए, कि क्या काम करते करते आते हैं, या आप काम के अलग से भी उसको डेवलप करते हैं, या हैबिट होती है कुछ इस तरह से, क्या कॉम्बिनेशन होता है? देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। कुछ स्किल्स हैं तो शायद आपको काम करते करते ही आएंगे, बट हम्म ऐसा नहीं है कि उससे पहले आप बना नहीं सकते, आप बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे 2 3 तरीके हैं बनाने के। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, जो हम्म टेक्निकली अभी नौकरी नहीं है, बट इंटर्नशिप करके आप 2 3 महीने काम करते हैं तो आप थोड़ा समझ जाते हैं ऑफिस में क्या करना है, कैसे तरीके से कम्युनिकेट करना है, क्या डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। कि यार अगर ये ऑफिस 9 to 5 है तो मुझे 9 बजे पहुंचना है, कम से कम 5 साढ़े 5 6 बजे तक काम करना है, तो वो डिसिप्लिन आपके अंदर आता है। तो आप इंटर्नशिप का एक जरिया है जिससे ये बना सकते हैं। दूसरा जरिया है, कुछ कॉलेजेस में आप इनिशिएटिव लेके, जैसे फेस्टिवल होते हैं किसी कॉलेज में अलग अलग, या किसी कॉलेज में कोई कमिटी होती है, तो आप उन सब का हिस्सा बन के उसका लीडर बन सकते हैं, वहां से लीडरशिप स्किल डेवलप कर सकते हैं, वहां पे कुछ काम कर सकते हैं। आप किसी एनजीओ के साथ, जैसे सक्षम रोजगार, आप इनके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं कि यार मैं आपके साथ सैटरडे संडे थोड़ा और मेहनत कराऊंगा, वहां से आप स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो नौकरी के साथ साथ या नौकरी से पहले भी आप काफी चीजें डेवलप कर सकते हैं, और फिर नौकरी में उसको आप होन कर सकते हैं। हम्म। मैं सभी पार्टिसिपेंट जो हमारे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ, या अन्य पार्टिसिपेंट हमारे साथ इतने इतने होशियार, इतने इंटेलिजेंट और इतने वाइब्रेंट पर्सनालिटी हमारे बीच में है। हर कोई चाहेगा कि मेरा बच्चा निश्चय बुद्धि राजा की तरह बने, या हर बच्चा भी चाहेगा कि मैं निश्चय बुद्धि राजा बनूं। तो आपके अपने जो सवाल अपने कैरियर से रिलेटेड, अपनी नौकरी से रिलेटेड या अपनी पढ़ाई से रिलेटेड हो, उनको कृपया करके नोट कर ले। या मैं एक या दो और नए सवाल पूछूंगी, फिर हाउस आप सबके लिए ओपन रहेगा। सो प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए, और निश्चय आपके सवालों के जवाब देंगे। और एक विषय जो आजकल तो बड़ा ट्रेंड है, मतलब जैसे ये अ, जिनको हम ब्लू कॉलर जॉब्स कहते थे पहले, बड़ा ही अजीब तरीके से कहते कि वो तरखान है, वो इलेक्ट्रीशियन है, बड़ा मतलब सब स्टैंडर्ड तरीके से लिया जाता था। पर ये ये एसी रिपेयर वाला है, अर्बन कंपनी वगैरह ने एकदम से लेवल अप कर दिया है सारी चीजों का। और मतलब इन इन नौकरियों को इस तरह से, और जैसे पिछली बार भी आपसे बात हुई तो आपने बताया कि वो पार्टनर्स बोलते हैं, और लाख लाख रुपया एक कारपेंटर कमाता है। तो इन सारे जो स्ट्रीम्स हैं, ओपनिंग्स हैं, इनके बारे में आप थोड़ा बताएं। जी, एक पुराने जमाने में वो चला आ रहा है कि शायद ये नौकरियां उस लेवल की नहीं है, हमारे बराबर हम्म नहीं है। जो आई थिंक विद टाइम चेंज हो रहा है। जैसे ये कंपनी, जैसे हम्म। आपने सही बताया, अर्बन कंपनी है। अब तो आई थिंक सबको पता होगा, अर्बन कंपनी ने इंस्टा हेल्प करके निकाला है, जिसमें आप घर पे हाँ, किसी को बुला सकते हो। हेल्पर्स, हाँ। हेल्पर्स का निकाला है। ऐसे 2 कंपनी और आ गई हैं, स्नैपडील और प्रोंटो। तो हम्म धीरे धीरे इन ऐसे कामों को भी इज्जत मिलने वाली है। और इसका अगर आप लीडिंग इंडिकेटर जिसे बोलते हैं, कि हम कैसे प्रूफ है, कि आप बाहर की कंट्रीज में अगर देखें जो हमसे ज्यादा डेवलप्ड है, वहां हम्म पर इन लोगों को बराबर इज्जत ही है। चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर हो, चाहे वो ऑफिस जाता हुआ इंसान हो, सब बराबर माने जाते हैं, क्योंकि वो भी अच्छा कमा रहे हैं, उनकी भी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो जब डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में वो आज नहीं आएगा तो कल आएगा, बट वो आना शुरू हम्म हो चुका है, जो हमें इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। एक मैं आपसे नंबर और शेयर करता हूँ। अभी रिसेंटली आर्टिकल आया था कि 20 साल पहले जो एक एवरेज प्लम्बर कमाता था, वो 1.5 से 2 लाख रुपए साल का कमाता था। और टीसीएस की जो नौकरी शुरू होती थी वो 3.5 लाख रुपए से शुरू होती थी। हम्म। अब आज प्लम्बर तो 3.5 लाख पर आ गया, टीसीएस वाला अभी भी 3.5 लाख ठीक पर है। तो ठीक। आज दोनों बराबर हो चुके हैं। हाँ। और धीरे धीरे हम्म प्लम्बर ही तेज बढ़ रहा है। मैं नहीं कह रहा हम्म कि टीसीएस की नौकरी अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी है, उसमें ग्रोथ आएगी, आप बढ़ोगे उससे। मतलब हम्म पॉइंट इससे ये है कि
प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन इनकी अर्निंग भी बढ़ गई है, बी इनकी इज्जत भी बढ़ चुकी है, और जो थोड़ा बहुत बची कुची कसर है अगले 5 7 8 10 सालों में वो जरूर 100% पूरी हो जाएगी। तो ये काम भी इक्वली अच्छे, इक्वली अर्निंग और बहुत रिस्पेक्टेबल है। और इन एप्स ने बहुत उसको वैल्यू एडिशन किया है। और आखिरी सवाल, सवाल तो मेरे पास बहुत सारे थे, पर मुझे लगा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपके अपने परिवार में आईआईटी और आईआईएम, आपकी अपनी धर्म पत्नी, और वो अपना बिजनेस कर रही हैं, तो उसके बारे में हमारे बच्चों को बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे लेते हैं, इतनी शिक्षा के साथ अपना व्यापार करना। इसको आप हमारे बच्चों के साथ शेयर करिए। मेरा आखिरी सवाल है। अभिषेक, इसके बाद आप ओपन सेशन करेंगे। यस, तो मेरी वाइफ राधिका जो हैं वो भी आईआईटी रुड़की और फिर आईआईएम अहमदाबाद से हैं। उन्होंने 3 साल नौकरी करी, उसके बाद उनको अपना कुछ करने का शौक था, तो आज उनका अपना साड़ी का ऑनलाइन स्टार्टअप है जिसका नाम है अनोरा। तो इंस्टाग्राम और ऑनलाइन अपनी वेबसाइट से वो साड़ी सेल करती हैं। वो शायद आज अपने काम में ज़्यादा खुश हैं वर्सेस जो वो पहले थी, क्योंकि ये उनका, जैसे पैशन की आप बात कर रहे थे, तो उनका हाँ। पैशन था कुछ आर्ट रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी आर्किटेक्चर करी थी, हम्म। इंजीनियरिंग नहीं करी थी आईआईटी रुड़की से। तो उनके अंदर हमेशा एक आर्टिस्टिक एंगल था, उनका पैशन था वो, तो उन्होंने उस पैशन को कहाँ मैं पैसा कमा सकती हूँ साथ में उससे जोड़ा। हम्म। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आर्ट कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल साड़ी बेचने में, साड़ी डिजाइनिंग में जरूर आर्ट है, लेकिन उसको हम्म। बेचने में उसमें फाइनेंस भी इंक्लूडेड है, उसमें एचआर भी इंक्लूडेड है। तो उन्होंने उसको कहीं जोड़ा और उससे अब वो आज अच्छा पैसा कमा रही हैं। तो अच्छी पढ़ाई आईआईटी आईएम करने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि क्या साड़ी बेच रहे हो, साड़ी तो कोई भी बेच सकता है, इतने पढ़ाई क्यों करी आपने। हाँ, क्यों पढ़ाई करी। हाँ। हाँ। पर वो पढ़ाई पूरी यूज होती है साड़ी बेचने में, हाँ। ऐसा हमें लगता है कि वो पढ़ाई करी उसका क्या हुआ, हाँ। बट एवरीथिंग, आप जो भी डिसीजन लेते हो, कैसे बेच रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो कस्टमर को, किस टाइप की सर्विस दे रहे हो, कौन सी साड़ी बेच रहे हो, कैसे टारगेटिंग कर रहे हो, कैसे ऐड चला रहे हो, हर चीज में पढ़ाई जरूर काम आती है। कुछ अभी काम आती है, कुछ 2 साल बाद काम आती है, बट काम जरूर आती है सब। मतलब साड़ी बेचने के लेवल को भी उन्होंने अप कर दिया, हाँ जी, ये यस। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। सो अभिषेक, ओवर टू यू। Thank you, ma'am, and thank you, sir, for providing such a beautiful and wonderful session. एंड आप दिल से रिक्वेस्ट है कृपया करके अपने जो फोन से कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम साथ में सीट होल्ड ले सके ठीक से। तो थैंक यू एवरीवन। और अब फ्लोर ओपन है, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं सर से पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो फ्लोर इज योर्स। तो मेरा क्वेश्चन हमेशा की तरह पहले होगा। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से जॉब मार्केट रैपिडली चेंज हो रही है और हम देखते हैं कभी कुछ सीखना होता है, कभी कुछ लोग बोलते हैं ये फॉलो कर लो, तो वो क्या स्किल एसेंशियल स्किल्स हैं जो हर एक जॉब मार्केट में शायद परफेक्टली फिट हुए जाए या होनी चाहिए इंसान के पास, उस पर थोड़ा सा आपका मैं व्यूज जानना चाहूंगा। यस, देखिए वो कॉमन स्किल्स हर जॉब में जो चाहिए होते हैं, मेरे हिसाब से वो 3 4 स्किल्स हैं। और हम भी जब ब्लिंकिट में किसी का इंटरव्यू करते हैं, किसी को रिक्रूट करते हैं, हम भी 3 4 चीज़ें देखते हैं। और आप सही कह रहे हो कि टाइम के साथ बहुत सारे नए नए स्किल आते रहते हैं मार्केट में कि यार ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। तो जो 3 4 मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बोलते हैं, कि यार आपको अगर मैं कोई प्रॉब्लम दूँ सॉल्व करने के लिए, क्या आप दिमाग लगाकर सोचकर उसका सॉल्यूशन ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं। वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री होता है, कॉमर्स, साइंस, ब्लिंकिट, जोमेटो, मैकिंजी, वो कॉमन स्किल है जो हर एक इंसान, लॉयर हो, सीए हो, कोई भी हो, उसको आना चाहिए वो स्किल, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। दूसरा जो मैंने सेशन में पहले भी बताया था, ओनरशिप स्किल, कि अगर प्रॉब्लम दी गई तो उसको आप एंड टू एंड सॉल्व करके हटते हैं या आप थोड़ा सा एफर्ट डाल के पीछे हट जाते हैं, तो उसको हम ओनरशिप का स्किल बोलते हैं। और तीसरा मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन, कि क्या आप अपनी बात को सामने वाले को आसान शब्दों में समझा पाते हैं कि नहीं, चाहे वो फिर हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई और भाषा हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही हो, बट क्या आपके मन में जो विचार है, क्या आप सामने वाले को वो सीधे और स्पष्ट शब्दों में बता पाते हैं कि नहीं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओनरशिप और कम्युनिकेशन, ये 3 स्किल मैं बोलूंगा जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे किसी भी नौकरी में। एक थैंक अभिषेक, यू सो एक मच सर। पॉइंट रह गया
अगली जो हमारा नेक्स्ट सैटरडे जो हमारा टॉपिक है वो इमोशनल इंटेलिजेंस या मेंटल हेल्थ के ऊपर रहेगा, और डॉक्टर प्रतिभा गोगिया उस सेशन को लेंगी 29 अगस्त को, कमिंग सैटरडे। यस अभिषेक, यू मे कंटिन्यू। थैंक यू मैम। और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, फ्लोर ओपन है। यस पूजा, आप कुछ शायद पूछ रहे थे, आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि अगर हम किसी भी जॉब रोल के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्टली अगर हम टीयर 1 कंपनीज में अप्लाई करते हैं तो रिस्पांस नहीं आता है, तो हम कैसे उसे इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि ब्लिंकिट में हमें अप्लाई करना है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, तो एज अ फ्रेशर, तो हम क्योंकि ब्लिंकिट में मोस्टली हायरिंग्स फ्रेशर्स के लिए भी होती है, तो हम इफेक्टिवली अदर पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, क्योंकि मोस्टली एक रोल पे 10K 20K एप्लीकेंट्स होते हैं जो सेम रोल पे अप्लाई कर रहे होते हैं विद इन 24 आवर्स, तो हम उनसे अलग कैसे दिख सकते हैं? सही बात है। तो आई थिंक वो कुछ कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। कुछ कंपनियां लिंक्डइन पे अपॉर्चुनिटीज खोलती हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपने सही बोला, वहां अप्लाई करो तो बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ कंपनीज में आप रेफरल यूज कर सकते हैं। जैसे जोमेटो में आई नो कि अगर आप जोमेटो में कोई आपका दोस्त है जो काम कर रहा है, और वो अगर आपका सीवी एचआर को फॉरवर्ड कर दे कि यार मैं राहुल को जानता हूँ, राहुल अच्छा काम करता है, या इसकी रहा उसका सीवी, तो वहां से रेफरल के थ्रू हेल्प हो सकती है। कुछ आप अपने जो सीनियर हैं जहाँ से आपने पढ़ाई करी है, आप वहाँ के कुछ लोगों को बोल सकते हैं कि यार आप जहाँ नौकरी कर रहे हो वहाँ आप क्या ओपनिंग है, तो मेरा आप अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। चौथा, अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप इंटर्नशिप से शुरू कर सकते हो कहीं पर, कि यार 6 महीने की मैंने एक इंटर्नशिप शुरू कर ली, अगर उनको मेरा काम अच्छा लगा तो वो नौकरी में बदल जाएगा। तो ये 3 4 जरिए हैं। आप अपना नेटवर्क यूज़ करिए, लिंक्डइन यूज़ करिए, Naukri.com जैसे पोर्टल यूज़ करिए, जिसके थ्रू आप आज नहीं तो 2 4 6 हफ्तों में जरूर आप नौकरी लगवा पाएंगे। Sir, I want to ask my question. Are you providing the job? जॉब आप जो भी आपका सीवी एक्सेट्रा है, क्या ओपनिंग है उसके हिसाब से ओपनिंग्स तो रहती हैं हमारी कंपनीज में, बट क्या प्रोफाइल है, किस टाइप की आप नौकरी चाहते हैं, उस टाइप की ओपनिंग है कि नहीं, वो देखकर उसके हिसाब से इसका आंसर करना पड़ेगा। सर कैसे मतलब आपसे हमारा मतलब कांटेक्ट हो पाएगा, जैसे हम आपको सीवी वगैरह शेयर करें तो आप कैसे मुझे इन्फॉर्म कर पाएंगे आप इसके सीवी रिगार्डिंग? मेरे को शेयर करिए। मैम आपको कांटेक्ट नंबर कैसे मिलेगा मुझे? कांटेक्ट नंबर क्या, ये सक्षम रोजगार सोसाइटी का वेबसाइट है, आप लिंक्डइन उस पे पे। रीच आउट कर सकते हैं सर को। और नहीं, अच्छा वैसे भी तो आप आज सक्षम रोजगार सोसाइटी के थ्रू अगर करेंगे तो वो बेटर रहेगा। हमारी वेबसाइट है सक्षम रोजगार सोसाइटी, आप उस पे डालिए और हम उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे आपके प्रोफाइल को, जो भी आप करेंगे। ओके ओके श्योर, थैंक यू सर मैम। मेरा एक क्वेश्चन ये भी था, जैसे कि एज अ फ्रेशर जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो मोस्टली जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो भी मोस्टली स्टार्टअप में जॉब कर रहे होते हैं, तो अगर हमें टीयर 1 कंपनीज को टारगेट करना है तो एज अ फ्रेशर लेवल पे अगर हमारे पास रेफरल नहीं है तो उसमें हम कैसे इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं? थोड़ा मुश्किल हो सकता है वो, ऐसा नहीं है हर टीयर 1 कंपनी फ्रेशर को शायद ले। उस क्योंकि उनकी, जैसा आपने बोला, ब्लिंकिट है, अगर उसके पास 10,000 एप्लीकेंट आ रहे हैं, उसके पास ओपनिंग 4 हैं, और उसको 4 लोग मिल जाते हैं जिनके पास या तो एक्सपीरियंस है या वो कोई बहुत अच्छे कॉलेजेस से हैं, तो वो शायद उनको प्रेफर कर लेगी। तो जरूरी नहीं है कि आप जो टीयर 1 में जाना चाहें पहली बारी में आपको वो मिल पाए। तो शायद आपको, जहाँ आपके सीनियर जैसे आपने बताया कि स्टार्टअप में जॉब कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है शुरू वहां से करना पड़े, 1 साल 2 साल 3 साल वहां एक्सपीरियंस लेना पड़े, और उसके बाद आप अपनी ड्रीम कंपनी में जा पाए। जरूरी नहीं है कि पहली बारी में ही आप अपनी ड्रीम कंपनी में जा पाए। और सर एक और क्वेश्चन था, मोस्टली सर अभी टेक और कंसल्टिंग ट्रेंड में चल रहा है, तो जैसे आपने बीटेक किया था, चाहते तो आप टेक की तरफ भी जा सकते थे, तो आपने कंसल्टिंग ही क्यों चूज किया या स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट ही क्यों बने आप? ये क्वेश्चन था। जा सकता था मैं, बट मेरा रीज़न बहुत सिंपल था कि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया उस साइड। जब मैंने, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि 11वीं 12वीं में लगा कि शायद मुझे इसमें इंटरेस्ट आएगा तो चलो पढ़ लेते हैं, ये पढ़ाई करी, उसको और समझा, लोगों से समझा कि इसमें किस टाइप की नौकरियां लगती हैं टेक में, तो मुझे लगा कि शायद मेरी पर्सनैलिटी इसके लिए सूटेड नहीं है, मुझे बहुत मज़ा नहीं आएगा इसमें।
इसलिए फिर मैंने बीटेक के बाद एमबीए करा कि मुझे थोड़ा बिजनेस साइड, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस इस टाइप थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था। और उसके बेसिस पे फिर मैंने कंसल्टिंग में नौकरी ली तब। हेलो सर। सर जैसा कि अभी आपने टीसीएस का एग्जांपल दिया मैं टीसीएस में ही वर्क करती हूँ फ्रॉम लास्ट 7.5 इयर्स। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ब्लिंकिट एज अ रेफरल के अलावा कौन से प्लेटफॉर्म को, नौकरी या लिंक्डइन, कौन से प्लेटफॉर्म को प्रेफर करता है? सबसे ज्यादा तो रेफरल को प्रेफर करता है, बट लिंक्डइन के थ्रू ओके। भी कुछ कुछ हायरिंग करता है। Naukri.com से बहुत ज्यादा हायरिंग नहीं करता। ओके। ओके सर, थैंक यू। तो सर रेफरल ही लगवाना पड़ेगा। बेस्ट तो रेफरल ही है, यस। मतलब रेफरल का कितना वैल्यू है, ये तो हमने कभी सोचा नहीं। हाँ, दैट्स नहीं मैम, लाइक बहुत वेरी वेरी वैल्यू है। इंपॉर्टेंट। हाँ, इट्स रियली। मुकेश, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है। गुड इवनिंग मैम एंड गुड इवनिंग सर। सर मेरा डाउट ये था कि जैसे मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ मैं भी, बट मेरा भी ऐसे स्कोर अच्छा नहीं है, तो मुझे आईआईटी एनआईटी नहीं मिली। तो मैं से टायर 3 कॉलेज से, वो भी टायर 2 सिटी से कर रहा हूँ। तो अब मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे आईआईटी में आपने स्पेंड किया टाइम, तो आपने क्या ऐसी चीज देखी कि स्टूडेंट ऐसा क्या यूनिक कर रहे हैं जिससे वो आईआईटी या कहें कि जो वो इतना अचीव कर रहे हैं, कर लेते हैं, जो उन्हें डिफरेंट बनाता है, ऐसा क्या चीज है? और कि वो हम भी वही करें ताकि हम ऐसे टायर 2 कॉलेज से भी अच्छी जगह पे या टायर 1 कंपनीज में ज्वाइन हो सके, जैसे हमारे 4 साल के अंदर में हम वो चीज इंप्रूव कर सके अपने अंदर। सही बात है। तो एक ही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर रहता है ज्यादातर, वो है मेहनत। कि जो अच्छे कॉलेज या जो चला गया, जो उन कॉलेजेस में उस आसपास सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप पीछे नहीं छूटते। आपको भी लगता है कि यार मैं भी मेहनत कर लूँ, मैं भी आगे बढ़ जाऊं। तो अगर आप जिस कॉलेज में हैं आप वहां से मेहनत करेंगे, तो आप आईआईटी वाले के बराबर क्या, आप आगे भी निकल सकते हैं। बट जो एक फैक्टर है वो है मेहनत। सेलेक्ट कर लो क्या करना है और मन लगाकर उसकी तरफ काम करो। आप बिल्कुल सक्सीड करोगे जो आप करना चाहते हो उसमें। सर जैसे यहाँ पे कि यहाँ पीयर ग्रुप और फैसिलिटीज वगैरह, कनेक्शंस भी नहीं मिल पाते, तो मतलब थोड़ा स्ट्रगल टाइप का हो जाता है। तो मतलब एक रोड मैप जैसे कहें कि हम 4 साल के अंदर में ऐसे से स्टेप बाय स्टेप बढ़े कि मतलब ज्यादा स्ट्रगल भी ना करना पड़े और हम अच्छी जगह पहुंच भी जाए। क्योंकि यहाँ तो तो रेफरल्स, यहाँ जो सीनियर्स भी हैं वो भी टायर 2 कॉलेज वो कंपनीज में ही जा रहे हैं, अच्छे ज्यादा से ज्यादा टीसीएस में जा रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा यहाँ का वही है। टीसीएस में मास मास जो होता है वही हो रहा है। तो सबसे अलग कैसे निकलना है भीड़ से सर? देखिए, दो तीन चीजें हैं। आप सोच रहे हैं कि अगर स्ट्रगल नहीं करना पड़े, तो ऐसा तो नहीं होगा। स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो वो तो शायद आईआईटी का बंदा भी स्ट्रगल करता है, आईएम का भी करता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, हर कॉलेज का बंदा स्ट्रगल करता है। अलग अलग टाइम पे करता है, अलग अलग अमाउंट की स्ट्रगल करता है। तो स्ट्रगल से बच नहीं सकते आप। तो वो आप मत सोचिए कि मुझे स्ट्रगल से बचना है। नहीं बचना है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। दूसरा आपने बोला कि कैसे बेस्ट कर सकते हैं, कॉलेज के सीनियर्स आपने बताया सही। एक तो सही ऑप्शन वो है ही। आ, दूसरा, आप खुद इंटर्नशिप लगाकर लोगों को रीच आउट कर सकते हैं कि आप उस 4 साल में ही अलग अलग 2-3 अलग अलग जगहों पे काम करें, वहां से सीखें, वहां के लोगों के साथ कनेक्ट करें जो शायद आपके कॉलेज के ना हो, ताकि आपका और लोगों से जान पहचान बढ़े, जहां पर आप जाके अच्छा काम करें और उनका रेफरल यूज कर पाए। और जो आपने बोला कि कॉलेज के सीनियर शायद टीसीएस जाते हैं, तो टीसीएस एक बहुत अच्छी जगह है। आप वहां जरूर जा सकते हैं, वहां से शुरू करिए नौकरी, वहां कुछ साल काम करिए। जैसे जैसे काम सीख जाए टीसीएस में ग्रो करिए, या जॉब चेंज करके कहीं और ग्रो करिए। तो ऐसा नहीं है कि टीसीएस नहीं जाना, अच्छी नौकरी है वो भी, वो लगाइए। कुछ चीजें शायद आपको इमिजिएटली ना मिले, 5 साल मेहनत करने के बाद मिले। वो मेहनत करते रहिए। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था। जैसे कि आपने आईआईएम का एग्जाम दिया था, तो टॉप 100 परसेंटाइल आए थे। तो आपने जब आईआईएम के लिए अप्लाई किया था, तो इंटरव्यू में आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे आफ्टर बीटेक? और आपने एक्सपीरियंस शो किया था उस टाइम, या एज अ बीटेक के बाद ही आपने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया था? मैं बीटेक के बाद डायरेक्ट गया था, तो इसलिए मेरा वर्क एक्स तो नहीं था तब।
क्वेश्चंस बहुत ही वेरिड होते हैं, हर आईएम का अलग इंटरव्यू होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 6 आईएम के इंटरव्यूज दिए, तो मेरे 6 अलग अलग इंटरव्यू हुए, और वो हर इंटरव्यू आपस में बहुत डिफरेंट होता है। वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, लाइफ में क्या करना चाहते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही कुछ पूछा। लाइफ के बारे में कहीं पे भी कुछ भी पूछा जा सकता है। 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है टिपिकली। I think there are no more questions, so we can wind up here. Hello, sir. So thank you, sir, for. Yes, Ankush, please proceed. Good evening, sir. My name is Ankush Kumar. I am from Kanpur, currently pursuing BTech in Electronic Communication Engineering. सर मेरा डाउट बेसिकली ये रहता है कि कॉलेज तो टीयर 3 है, बट उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नहीं आती है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स करने का फिर मतलब ही क्या हुआ? इस कॉलेज में तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नहीं है, और जो भी सीनियर है सारे के सारे स्टार्टअप्स में जाते हैं, या तो टीसीएस में चले जाएंगे या तो सारे स्टार्टअप्स में जा रहे हैं भैया लोग। तो सर आपका क्या मतलब अनुमान, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद अगर आप स्टार्टअप में जा रहे हो सर? यार आप करना क्या चाहते हो उस पर डिपेंड करेगा। मतलब आपके लॉजिक के हिसाब से तो बहुत सारे इंजीनियर हैं, मैंने भी बीटेक केमिकल में करी है और मैं ब्लिंकिट में नौकरी कर रहा हूँ, जिनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। बट वो क्योंकि मुझे नहीं करना था केमिकल में काम। बट हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी हो तो आप उसमें काम करना चाहें। और आपने बोला जैसे कि कॉलेज में नहीं आती है, अगेन उसके 2-3 तरीके हैं। आप या तो लिंक्डइन में उन कंपनीज को रीच आउट करिए जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है वो कंपनी आपको पहली बारी में एज अ फ्रेशर रख ले, तो आपको कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। आप किसी और छोटी कंपनी में या तो काम करिए, या शायद स्टार्टअप में 2-3 साल काम करिए और फिर उन कंपनीज को अप्रोच करिए कि यार मुझे आपके साथ इस इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में इस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना है। तीसरा ऑप्शन है, शायद वो मुझे पता नहीं आप कितना आपको अलाउ करेगा, कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिए इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी और कॉलेज से जहाँ पर ये नौकरियाँ ज़्यादा हों। बट उसके लिए फिर आपको 2 साल और पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसके बाद शायद आपको वो नौकरी मिल पाए जो आप सोच रहे हैं। यस सर, थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन था। जैसे कि मे बी अगर मैं ब्लिंकिट में अप्लाई करता हूँ, तो एज अ रिक्रूटर आप कैसे 10 के और 12 के एप्लीकेंट्स को फिल्टर आउट करोगे, अगर उसमें सेम 8 इयर्स वाला भी अप्लाई कर रहा है और एज अ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाला भी अप्लाई कर रहा है तो? तो यार 3-4 अलग अलग पैरामीटर्स पे हम देखते हैं कि कितना वर्क एक्स चाहिए हमें जो ओपनिंग है उसके लिए। फॉर एग्जांपल हो सकता है मुझे मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो जो भी 3 साल से कम वाले लोग हैं टेक्निकली वो अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगे। या मुझे इस रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए, या मुझे इस रेलेवेंट फील्ड की पढ़ाई चाहिए। हो सकता है मुझे चाहिए जिसने सप्लाई चेन की पढ़ाई करी हो, लॉजिस्टिक्स की पढ़ाई करी हो उस रोल के लिए। हो सकता है मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए हो। तो वो सब अलग अलग फिल्टर्स होते हैं। और वो टिपिकली जैसे मैंने एक फील्ड बताई थी एचआर, तो एचआर के लोग वो फिल्टर करते हैं, उसके सॉफ्टवेयर भी आते हैं और मैनुअली भी वो फिल्टर करते हैं। हो सकता है 10,000 में से वो 100 लोग शॉर्टलिस्ट करें, 100 को कॉल करें, उनसे 5-5 मिनट की एक इंट्रोडक्टरी कॉल करें, समझने के लिए कि उनका लाइफ में उनको क्या चाहिए, किस टाइप का उनका कम्युनिकेशन है, क्या इंटरेस्ट है। और फिर उन 100 में से 20 शॉर्टलिस्ट हो, जिन 20 का इंटरव्यू हो, और फिर उन 20 में से शायद 2 या 4 की नौकरी लगे, डिपेंडिंग ऑन कितनी ओपनिंग है। काफी सवाल आ रहे हैं और बीटेक की लाइन के सवाल ज्यादा पूछे, तो दैट इटसेल्फ शोज कि हाउ इम्पैक्टफुल वाज योर डिलीवरी। मतलब एकदम से साथ के साथ हमें उसका वो मिल रहा है। जी अभिषेक। तो थैंक यू सर फॉर आंसरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और यहाँ पे हम सभी को वाइंड अप करते हैं, और मैं आगे इनवाइट मैं चाहूंगा लिटिल दीपो फॉर द प्रोडक्शन। ओवर टू यू लिटिल। थैंक यू सो मच एवरीवन इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक्स अलॉट। हर साल की तरह इस साल भी बहुत मज़ा आया, एंड होपफुली आगे कंटिन्यू करते अगले रहेंगे। साल बिल्कुल आपको बुक करके रखेंगे, आपको अपना टाइम सेव रखना है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। Good evening, sir and ma'am. यस लिटिल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। Good evening, dear friends. I am Litesh on behalf of Saksham Rozgar Society. Feel honored to extend a vote of thanks. First of all, I extend my heartfelt gratitude to Mr. Nishchay Buddhiraja sir
for sharing his invaluable insight on how to get a good job. Sir, your practical experience and thoughtful response made today's session truly engaging and enriching. We sincerely thank you for your time and look forward to many more such interactions. A big thank you to all you, dear participants, for your active participation and enthusiasm. I wish to acknowledge and thank all the seniors of Saksham Bharati and Saksham Rozgar Society who graced today this class. Finally, heartfelt thank you to Miss Jyotka Kalra ma'am for her thoughtful question and excellent moderation, which made this season engaging, meaningful, and enjoyable for all of us. With this, wishing you all a very, very good night. Thank you, ma'am and sir. Thank you. So Thank you, thank Nishchit. you, Thank you Nitin very जी, for much. science. Good night. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और जाने से पहले Thank you. छोटा संदेश, अगर ये सेशन आपको कल यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज अपने जानने वालों के साथ और अपने ग्रुप आज में तक का बेस्ट शेयर करें। सेशन फरहत की यस सर, तरफ से मैं क्या लीव कर दिया निश्चय ने। वेरी गुड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड नाइट।